السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ملتان شہر کے جو سیوریج کے منصوبے شروع ہوئے کتنے مکمل ہوئے اور جو شروع کیے گئے ان پر اب تک کتنا کام مکمل ہوا، اور بار بار تاخیر کی وجہ سے اب جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ پریشان حال ہیں۔ ملتان کے مین روڈوں کی بات کریں، نوابپور روڈ، المصطفیٰ روڈ، اور اس کے علاوہ ٹی بی اسپتال روڈ، خیام سینما روڈ اور دیگر کئی منصوبے ہیں وہ کئی عرصے سے تاخیر کا شکار ہیں۔ آخر جب یہ منصوبے شروع کیے جاتے ہیں اس وقت تو کافی اعلانات بھی کیے جاتے ہیں، تختیاں بھی لگائی جاتی ہیں، خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں، لیکن ان منصوبوں کو وقت پر مکمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، شہریوں سے بھی جانیں گے، واسطہ حکام کا بھی موقف لیں گے۔ ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے نوابپور روڈ پر، جو کہ منصوبہ شروع ہوا تھا 1.5 سال پہلے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ واٹر سپلائی کا منصوبہ ساتھ شروع کیا جائے گا، اس کے بعد اس روڈ کو NHA بنائے گی اور یہ روڈ تب جا کر بنے گا۔ اس حوالے سے ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اس السلام روڈ کے جو حالات ہیں، جس طرح سے یہ مٹی دھول اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنی پریشانی کا سامنا ہے؟ بھائی جان، اتنی پریشانی ہے کہ ابھی کاروبار بالکل ختم ہو گیا، دکاندار بالکل دکانیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی اتنی ہے کہ بندے بیمار ہو رہے ہیں بہت زیادہ، کہ اس کے علاوہ جو ہے نا کام بالکل ختم ہے۔ ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ روڈ کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بس بنا رہے ہیں، لیکن جب کوئی افسران بالا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بن جائے گا، وہ 2-4 دن میں بنوا دیتے ہیں، اسے ہفتے لگ جائے گا، 15 دن۔ سیوریج والے بھی آئے، ایکسیئن صاحب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واٹر سپلائی کا منصوبہ شروع کریں گے، وہ ڈلے گی لائن، اس کے بعد پانی کا منصوبہ انہوں نے کہا ہے وہ بھی ڈالیں گے، ابھی تک وہ بھی نہیں ڈالا۔ ابھی تک یہ دیکھیں کہ بھئی سڑک کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں کے MNA صاحب نے تختی لگائی تھی، افتتاح کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ یہ خوشخبری ہے نوابپور والوں کے لیے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ السلام علیکم جی، السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اس روڈ کی حالت تو ہمارے سامنے بھی ہے اور آپ سب بھی اس کو فیس کر رہے ہیں، کس حد تک پریشانی ہے؟ بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب اس مٹی ہے، سارا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، کوئی پروگرام نہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کوئی فیوچر پلان کوئی نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا خاصا روڈ تھا، منصوبے ہوتے ہیں سال میں مکمل ہو جاتے ہیں، 6 مہینوں میں۔ ہوتا ہے نا بھائی، اتنے عرصے میں ہوگا، اتنی لاگت ہو، یہ ہوگا، سارا بورڈ لگا ہوتا تھا نا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہی افتتاح ہوا تھا۔ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہ اب چل نہیں سکتے آپ، یہاں تو گزرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے، بزرگ افراد کے لیے۔ بہت مشکل ہے، اور خاص طور پہ نا رات کو تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر گھروں میں پانی آ رہا ہے، پانی کون سے والا پانی؟ واسطہ کا واٹر سپلائی پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی بند ہے بالکل بند۔ ہاں، کتنے عرصے سے؟ بہت عرصے سے ہے یہ بل ابھی ہم نے پے کیا ہے، ہم بھی بل کے بل آ رہا ہے، ہاں بل باقاعدہ سے آ رہا ہے، اور اس کی نا اس کی سپلائی جو ہے نا وہ پانی کی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ تو اب آگے گلیوں میں گٹر سارا ابل رہے ہیں نیچے، اس کی جو ہے نا باقاعدہ کنیکشن وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں جی۔ آپ صورتحال جان رہے ہیں کہ لوگ کس حد تک پریشانی سے دوچار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی زیادہ مسائل ہیں۔ اچھا آپ بتائیے گا کتنی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے یہاں پر روڈ اور سیویج کے مسائل کی وجہ سے؟ ہے تو بہت ہے، لیکن زیادہ تر تو دیکھیں نا روڈ ٹوٹا پڑا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، روز بے روزگار ہیں بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں ہے، سر درد، سر کو کوئی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کا خیال ہی نہیں اتنی ہے۔ زیادہ مہنگائی ہے، اوپر سے پھر دکانیں بھی ہیں، کاروباری علاقہ بھی ہے، اور پھر کاروبار تو اب ہے ہی نہیں، دکانیں بند ہی نظر آ رہی ہیں، تو پھر آمدن کہاں سے آئے گی؟ پھر پریشانی ہوگی۔ جی ایسی ہی ہے جی، پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جس سے جا کے آگے جا کے جس سے پوچھیں، دکاندار پوچھیں یا ریڑھی والے سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے وہ۔ اس روڈ پہ اب کسٹمر تو کوئی نہیں آئے گا، جہاں کے مکینوں کا چلنا مشکل ہے تو کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ جی نہیں آتے، کوئی ایسی ہی ہے کچھ۔ آپ بتائیں کیا کام کرتے ہیں؟ میری شاپ ہے کٹنگ شیپ کی۔ کٹنگ، تو یہاں پر آپ کا کام صحیح چل رہا ہے؟ نہیں صحیح نہیں چل رہا، کام شام ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، کوئی آتے نہیں تو پھر کیا کام چلے گا۔ پہلے جب یہ منصوبہ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت کیسے چل رہی تھی شاپ؟ اس وقت تو بہت کام تھا ماشاءاللہ، ٹائم نہیں ملتا تھا ہمیں، اتنا کام تھا۔ منصوبے تو شروع ہوتے ہیں، اچھی بات ہے کہ ورکنگ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو منصوبہ ہوا ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن صحیح نہیں ہوا یہ۔ سال سے آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ایسے کاروبار کر رہے ہیں؟ جی ایسے کاروبار کر رہے ہیں، کرایہ بھی دینے پڑتے ہیں، بجلی کے بل بھی دینے پڑتے ہیں،
बहुत मसला हुआ है बड़ा हम लोग के लिए। ज़्यादा मसला है। अच्छा आप बताइएगा, आप भी यहीं के रहायशी हैं? जी भाई मैं यहाँ रहने ये जो रोड की हालत है और जो सीवी लाइन का मंसूबा शुरू हुआ था, कहा था कि नई लाइन डालेंगे आपका सीवरेज का मसला हल हो जाएगा, कोई उम्मीद पैदा हो गई है? भाई कहाँ उम्मीद पैदा हो गई। आज 3 साल हो गए इधर बर्बाद हुए पड़े हैं। इधर से नहा के निकलते हैं 2 मिनट 5 मिनट के बाद दोबारा वही मट्टी मट्टी, जहाँ से कुछ भी नहीं गुजरता। ट्रैफिक वगैरह चलनी बंद हुई पड़ी है यहाँ से। तो ये तो लोग सांस की बीमारियों के सही बात है, बच्चे बीमार हुए पड़े हैं काफ़ी इसी दौड़ की वजह से। हादसात भी होते होंगे हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि सारा रोड टूटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा गंद बच्चा पड़ा इधर, लाइनें डल नहीं रही, सारे मच्छर बना ये वो बीमार हुए पड़े हैं यहाँ बच्चे। के मुंतखब नुमाइंदे जो MNA साहब MP साहब वो नहीं है? भैया वोट लेने के लिए आते हैं, जब ले लेते हैं फिर कोई नज़र नहीं आता, फिर घर घर। आप बताएं, आपका ठेला है, कितनी मुश्किल होती है यहाँ से गुजारते हुए? बहुत मुश्किल होती है और पसीना इतना, पहले तो गर्मी थी माशाल्लाह, अब सर्दी है, अब तो इतना, पहले तो गंदा इतना रोड था, ठेला भी ख़राब हो जाता था, इतना पैसे लगा 100 रुपये पंचर को है पड़े। रोजाना ये पंचर के मसले भी होते हैं? आप हाँ हाँ, वट्टा लगता फट जाता है टायर। मसले मसले हैं। मसले मसाइल यही रोड का ही है मसला। आप बताइएगा, यहाँ से बाइक चलाना कितना मुश्किल है इस रोड पे? यहाँ से बहुत मुश्किल है, इतने गड्ढे हैं हमारा, तो इतने गाड़ी भी खस्ता हो जाती है चला चला के। हाँ जी, तो ये कब से मसला चल रहा है? ये तकरीबन 8-9 माह से तो हम देख रहे हैं इसको, ऐसे ही है ये। ऐसे ही चल रहा है दूसरे तीसरे जी इस वक्त। अस्सलाम अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह के यहाँ तो रुकना भी मुश्किल है धूल मट्टी की वजह से। सर, कई बीमारियां का जो है ना जी, ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लोग अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं और उनसे किराया नहीं भरा जा रहा, और ये तीसरा साल शुरू होने वाला है, और मेरे ख्याल में आगे भी जो है ना जी कई मुद्दत और लगेगी। अभी वो कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई का मनसूबा साथ शुरू करेंगे, वो फंड आएगा, वो लाइन डलेगी, उसके बाद जाकर रोड का काम होगा। हाँ जी, वो MDA ने वो कहते हैं, उनसे पूछे तो कहते हैं जी MDA पैसे नहीं दे रहा हमें, और कंपनियां जो है ना जी वो अपना पैसे खा के चली गई हैं। और यहाँ जो मुतलका जो इस बीट के MNA उनसे भी बात हुई है हमारी। अब तो पंजाब हुकूमत उन्हीं के पास है, फंड की तो कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी जाएं वो यही कहते हैं भी फ़ंड कमी है। वो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड बैंक का ये इनका ये फ़ंड था, ये मंसूबा था, तो ये तो अवाम यहाँ की बड़ी तंग है। कई लोग जो हैं जब वो इफ्तिताह हुआ था, जब आगाज़ हुआ था, तब तो एक उम्मीद होगी कि हाँ चलें इस रोड पे सीवेज का मसला हल हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये अब जो महल्ले की जो इनकी लिंक रोड्स, लिंक के साथ जो गलियों का जब सिलसिला है ना जी, वो नीचे हैं, और ये जो इन्होंने ऊपर ये डाली ये लाइन, ये ऊपर जो है ना जी ये ऊंचाई में है, वो गहराई में है, और ये हमारे इस महल्ले के जो है ना जी तकरीबन 2 माह तक जो है ना जी वो पानी अंदर महल्ले में खड़ा रहा है। पीटर लगाया, फिर दोबारा इन्होंने शुरू किया है। इनके लेवल ये सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, और लोग जो हैं XCN SDO जो हैं वो अपने जो है ना जी वो अपना कमीशन लेके इन्होंने काम बर्बाद किया है। ये तो लवारिस मुल्क की सूरत हाल हुई, और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो जो है ना इस पे तरफ तवज्जो करें और इसको जल्द अज जल्द जो है पाए तकमील तक जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। अंकल जी कैसे हैं आप? आपसे तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी तो हम जहाँ पे खड़े हैं, हम आगे नहीं गए। जिस तरह जहाँ मुनाजरा आगे से ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, तो फिर आवाम तो ज़हनी टॉर्चर का शिकार हो रही होगी। बहुत ज़्यादा ज़हनी ताशर शिकार है। मुसीबत ये है कि ना यहाँ तो कोई वली वारिस ही नहीं है। किससे बंदा शिकायत करे, किससे कहे भी ये क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर का कोई पता नहीं है। और जो है ना ये काफ़ी सारा मतलब लंबा एरिया है, आगे तक सारा सत्यानाश हुआ पड़ा है। 5-6 किलोमीटर ये सारा एरिया ख़राब है। तकरीबन हाँ 5-6 किलोमीटर है, और उसका ना बहुत बुरा हाल है। हमेशा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बनने की उम्मीद होती है, मुकम्मल होने की, तो आपको अब क्या उम्मीद है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा, क्या लगता है? ऐसे बेटे ना कोई आस उम्मीद नहीं है। अच्छा खासा रोड था, सब कुछ ठीक था, उसको बेहतर बनाने के लिए उसका सत्यानाश कर दिया। अब बजाय इसके ना कि लोग मतलब सहूलत देखें, मामला वो ठीक हो रहे हैं, उल्टा बेड़ा गर्क हो गया। जहाँ में लोग खुश होते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे लोग परेशान हो गए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अब यहाँ पे है मतलब जो साहब इख्तियार है या जो अथॉरिटीज़ है वो भी कभी नहीं आते, साहब जो कभी भी देखा नहीं है, शक्ल भी नहीं देखी। कह रहे हैं कि जी वाटर सप्लाई का मनसूबा साथ शुरू करेंगे, कब करेंगे फंड आएगा? पता नहीं, फंड कब आना है ये भी पता नहीं है। ठीक है ना, ये लगता है कि इलाका जो है ना ये मुल्तान का नहीं, किसी पाकिस्तान का भी नहीं है। लोग इस हद तक कब चल रहा है? अच्छा बोर्ड वहाँ देखे इफ्तिताह हुआ, लेकिन ये हमें पता नहीं है कब इफ्तिताह हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, बस सिर्फ तख्ती की हद तक है,
अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी। इस वक्त तक आप देख रहे हैं लोगों की गुफ्तगू। बुजुर्गों, क्या हाल है अंकल जी आपके? यहाँ पर जो हालात लग रहे हैं, लोग कारोबार अपना ख़त्म करके जा रहे हैं, दुकानें ख़त्म करके जा रहे हैं, तो क्या लगता है नवाबपुर पहले भी ऐसा था या अब बन गया? पहले क्यों ऐसा था भाई, पहले क्यों ऐसा था? ये तो वो अब बना है। एक साइड को वो ठीक कर गए हैं, पीछे आ रहे हैं। 2 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल और लग जाएंगे? बिल्कुल ना लगे, मैं लिख के देता हूँ। 2 साल में तो भी जिनका काम चल रहा है वो भी खत्म, काम खत्म हो गया। साहिब इक़्तिदार हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर उनका कोई प्लाजा जहाँ पे होता है फिर बन जाता शायद। प्लाजा है उनका आगे, डोगरों का प्लाजा है, मगर उनको वो कहते हैं हम अपने प्लाजे के लिए इतने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। उनका मकसद फ़ायदा पहुँचाना नहीं है, आवाम को तंग करना है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो आपके नुमाइंदे हैं मुंतखब, जिनको लोग वोट देते हैं, उनको एहसास ही नहीं है। है नहीं कोई, इधर का कोई बना नहीं है। सारे बाहर से गटर बांध देन, सारे इलाके दे गटर बांध देन, कोई पुछण वाला कोई नहीं। रोड के हवाले से थोड़ा बताएं कि क्या? के वाले से जो गटर सारे बंद हो रहे हैं, मल्लेदार सारे परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई बड़ी लाइन खुलेगी तो छोटे लाइनें खुलेंगे। अब हर बंदा मच्छर से बस आवाज़ार है। आ रही हैं, घरों में पानी आ रहा है। भाईजान घरों में पानी भी नहीं है, हर कोई डोगी पाम चलाता है, उसके साथ अपना पानी भी पीता है, गुजारा भी करता है। शाम को वही पानी निकाल देता है बाहर। बस इस वक्त आप सूरत हाल जान रहे हैं। आप बताइएगा कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है, रोड टूट फूट का शिकार, यहाँ तो गुजरना मुश्किल है। तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल 2 साल से ये फेस कर रहे हैं यही फेस कर रहे और अभी उम्मीद नहीं है कि बनेगा। हैं। नहीं, बिल्कुल उम्मीद कोई उम्मीद ही कोई नहीं है। यहाँ से देखे चले जाते हैं कि आज मुकम्मल होगा, कल मुकम्मल होगा, और उस हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर नौजवान बैठे हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। तो यहाँ पर जो रोड की हालत बनी हुई है, ये तो काफ़ी परेशानी है। बहुत परेशानी है, देख रहे हैं ये सारा मट्टी गर्द गुबार, देख रहे हैं आप। बच्चों को स्कूल से लेने आने जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है यहाँ से। यहाँ तो ना कोई ट्रैफिक, शाम के वक्त तो ज़्यादा मुश्किल होती होगी। मुश्किल है, देख लें, कोई लाइटों का इंतजाम नहीं है, रात को वारदातें आम हो जाती हैं यहाँ पे। बहुत परेशान है इनकी वजह से हम। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना, ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें आज वासा के नामुकम्मल मनसूबों के हवाले से, हम इस वक्त आपको रोड की कंडीशन दिखा देंगे। इस वक्त जो मनसूबे हैं उनकी हालत क्या है और लोग किस हद तक परेशानी का शिकार हैं। ज़रा हम लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? इस रोड की हालत है, कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना है, कब से ये मसला है? जन बहुत मसला पैदा हुआ है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। मिट्टी, धूल, बीमार हो गए हम तो। कारोबार बिल्कुल नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं, ट्रैफिक बंद है अंदर। हुकाम वाला क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, वैसे ही पड़ा काम, समझ गया ना। कोई उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाए? कोई पता नहीं जी, देख रहे हैं अल्लाह उनका। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहीं के मकीन हैं? नहीं जी, मैं भी बाहर का आया हूँ। अच्छा, बाहर का है। यहाँ आए हैं तो लगा कैसे है? यही है, आपके सामने ही है जना। धूल मिट्टी, धूल मिट्टी है, और क्या करें। मिट्टी है और ये सारी परेशानी का सामना है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग किस हद तक परेशान हैं। यहाँ पर लोगों के कारोबार थे, लेकिन यहाँ पर कई दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। बिलाल दिखा सके तो सामने सारी दुकानों के शटर डाउन है और यहाँ लोग अपना कारोबार छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि ये मनसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। कई ऐसे ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर लोग अब यहाँ पे कारोबार भी अपना ख़त्म कर रहे हैं। अंकल जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो यहाँ पर नवाबपुर रोड का मसला है, उसके अलावा बाकी रोडों का, ये वास्ता वाले मनसूबा शुरू करते हैं, ख़त्म ही नहीं होता। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, क्या करें, साइकिल पंचर हो जाते हैं, दूसरा एक्सल वगैरह टूट जाते हैं जो गाड़ी आती है, कोई मसला हल हो नहीं रहा। अभी उम्मीद है कि ये बन जाएगा? मुश्किल है, एक साल तो इसको देर है। अभी 1 साल है। हाँ, तब तक तो फिर हालात ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। ज़्यादा इसलिए मुश्किल हो जाएंगे ना। बजट आएगा तो बनाएंगे, बजट नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे? फंड ही नहीं है। फंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो वोट लेने आते हैं, वो कहाँ पे? वो अपने घर में होंगे, इधर तो कोई नहीं आता। पूछ नहीं है हाल अहवाल? कोई पता नहीं है। इलेक्शन में दोबारा आएंगे आपके पास? हाँ, तो आएंगे, फिर उनको याद कराएंगे? क्यों नहीं याद कराएंगे। ये कह रहे हैं कि हम
جب الیکشن ہے اس وقت بھی یاد دہانی کریں گے کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہیں. یہ آپ ملتان کا مصروف ترین روڈ تھا, آپ مناظر دیکھیں کیا حالات ہیں. انکل جی کیا حال ہیں آپ کے؟ اس روڈ کی جو حالت ہے آج ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, کتنی پریشانی ہے؟ بہت پریشانی جناب, بہت پریشانی ہے, اتنی پریشانی ہے نا تو ہم نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں پھر گاڑی وغیرہ رکھ کے. یہ بھی اب چند دن ہوئے انہوں نے ٹھیک کروائی اپنے آپ, بس بہت حالت خراب ہے. لگتا ہے یہ مکمل ہو جائے گا؟ لگتا تو نہیں, عمران صاحب کا پروگرام ہے, مشکل ہی لگتا ہے اس کا تو بھائی. مشکل لگتا ہے ووٹ لینے کے لیے؟ ووٹ لینے کے تو بہت جلدی آتے ہیں, ووٹ لینے کے لیے خواب دکھاتے ہیں. خواب دکھاتے ہیں؟ ہاں بھائی, بعد میں وہ غائب چلا غائب. کبھی ان کے ڈیرے پہ نہیں گئے کہ بھائی جان آپ نے خواب دکھایا تھا؟ بھائی ہم غریب آدمی کیا جا کے کریں گے بتاؤ. یہاں کام تو ختم ہو گیا ہوگا؟ ہاں یہاں کام ختم ہو گیا, لیکن پتہ نہیں کیا چکر ہے, ابھی ان کو سڑک روڈ بنا نہیں رہے. اور یہاں سے لے کے دیکھو وہ رستہ بھی خراب, یہ رستہ بھی خراب ہے, نہ وہاں جانے کے نہ یہاں جانے کے. نہ یہاں جانے کے نہ وہاں جانے کے. اور جی آپ گفتگو جان رہے ہیں تو اس وقت جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. 2 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. خدا را انتظامیہ ہوش میں آئے, وزیر اعظم ہمارا ہوش میں آئے, اس نواب روڈ کی قسمت کو جگا دے مہربانی کر کے. بچے بوڑھے سب پریشان ہیں, عورتیں پریشان ہیں. اس میں جس دن بارش آ جائے اس دن ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اتنے پریشان ہیں کہ ہماری موٹر سائیکلیں ٹوٹ گئی, ہمارے رشک کے بیچارے اسکول جانے بچے کبھی وہ گرے پڑے ہوتے ہیں, کبھی گاڑیوں کے سینسر ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں, کبھی گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہوئے پڑے ہوتے ہیں. خدا را ہماری جان چھوڑا دے اس مصیبت سے یار. یہ ارباب اختیار کو وہ حاصل ہے کہ وہ آج چاہیں تو آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ لوگ آج بھی چاہیں تو وہ آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. مہربانی کریں, ہم اس مصیبت سے ہماری نجات دے رہے ہیں. ابھی پھر دوسرے کالے پے والے پھر آ رہے ہیں, اور دیکھو پھر سامنے کرینے کھڑی ہوئی ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں, پھر ہمارے لیے اور نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا ہمارے لیے. شہریوں کی آپ نے گفتگو جانی کہ کس طرح لوگ پریشان ہیں اور ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر منصوبہ شروع کیا تھا تو مکمل بھی کر دو. آخر اس علاقے کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں, ذرا ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بھجن کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک اب تو ہم جب بھی اس علاقے میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ مکمل کب ہوگا, ہر بندہ کہتا ہے اب تو امید ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی دوبارہ حکام نے آپ کو امید دلائی ہے, کوئی دلاسا دلایا ہے؟ جی, یہ واسا والے یہاں سے روز گزرتے ہیں, ان کی کب مشینریز وغیرہ بھی یہاں پہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ نا کوئی ان کی کام کے اندر نا تیزی نہیں ہے. یہ پچھلے 2.5 سال سے جب سے انہوں نے کام شروع کیا ہے, دن بہ دن ٹریفک یہاں کم ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کا گزرنا کم ہوتا جا رہا ہے. اس کا ایفیکٹ ہمارے کاروباروں پہ پڑ رہا ہے, کاروبار نہ ہونے کے برابر ہو گئے. دکانیں یہاں بند ہونا شروع ہو گئی. دکانیں ساری آپ کے سامنے بند ہیں, صرف وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کی دکانیں اپنی ہیں یا جن لوگ کرایہ دار چھوڑ گئے, کرایہ دار سارے چھوڑ گئے ہیں. کسٹمر تو یہاں آنا نہیں ہے. جو حالت آپ یہاں کھڑے ہو جائیں 3 گھنٹے میں کوئی ایک آدھی گاڑی گزرتی ہے ادھر سے نا. تو یہ ملتان کا مین روڈ ہے جس کو انہوں نے نا بالکل اپنی نااہلی کی وجہ سے ختم کر دیا. یہاں کے ایم این اے صاحب, ایم پی صاحب وہ تو آئے تھے جب یہ منصوبہ شروع ہونے لگا تھا. جب منصوبہ شروع ہوا تھا تو عامر ڈوگر صاحب آئے تھے یہاں پر, کیونکہ اب تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, پھر یہ مسلم نور کی حکومت میں چلے گئی, یہ روڈ چلا گیا. اب آج کل مسلم کاف کے پاس ہے, تو کام جو ہے یہ کرتے ہیں. پہلے ایک پائپ لائن ڈالا ہے نیچے انہوں نے واسا کا, وہ بالکل ٹھیک پائپ لائن تھی, اس کو خود بخود انہوں نے ختم کر دیا. پھر اوپر اب 2 پائپ لائن اور ڈال رہے ہیں. وہ کام اتنا سستی سے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پیچھے وہ وہاں لودھی کالونی تک ان کو پہنچتے ہوئے تقریباً 2.5 سال لگ گئے ہیں. 2.5 سال لگ گئے ہیں اور ابھی تک مزید کام ہونا ہے. بھائی جان پھر کیسے کام چلے گا؟ اگر 2.5 سال اب لگ گئے ہیں تو مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ تو مزید آگے بھی 1.5 سال لگ سکتا ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. 1.5 سال کے بعد تو حالت ہی خراب ہو جائے گی. حالت تو ہاں پہلے سے خراب ہے. سوئی گیس نہیں ہے, پانی نہیں, کبھی لائن ٹوٹ جاتی ہے, کبھی واسا کی ٹوٹ جاتی ہے, کبھی گیس 1.5 سال نہیں آتا, 1.5 ماہ نہیں آتا, پھر ادھر جانے پڑتی ہے کمپلینے پہ کمپلینے. وہ آتے بھی نہیں ہے, بڑی مشکل سے آتے ہیں. عورتوں کو گھر والوں کو جانا پڑتا ہے ہمارے, جس سے لکڑیوں پہ ہمیں پانی بھرنے کہاں جاتے ہیں آپ؟ پانی فلٹر سے بھرتے ہیں, جیسے کہ کوٹلے میں ساتھ ہی ہے؟ ساتھ نہیں, دور دور ہے. روڈ سے تو پانی کا, اس روڈ پہ تو فلٹر ہے ہی نہیں. روڈ پہ ڈرم لے کے گھومنا بائک پہ تو وہ تو زیادہ مشکل ہے. مشکل ہے, ایک ڈرم سے کیا ہوگا؟ تو پانی تو کافی چاہیے ہوتا ہے. گھر میں جب 8-7 افراد ہوں تو پانی ایک ڈرم کم ہے نا, بہت کم ہے پینے کے لیے. جو بھی آتے ہیں نا میں نے ایم پی لولی پاپ دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. یہ روڈ بن جائے کم از کم 3 سال ہو گئے ہیں. تو عوام تو ہر بندہ یہاں پریشان ہے, خاص کر جو ہے نا جتنے بھی دکاندار آتے ہیں کرایہ دار سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو مالک دکان ہے وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی چند ایک بیٹھے ہیں. تو ویسے یعنی کہ پوری روڈ کے لیے پریشانی ہے, اور ہر بندہ اس کے لیے بہت اس دعا کو کہ اللہ کرے فوراً بن جاتا ہے کہ ہمارے کاروبار کھلیں. آپ دعا کر رہے ہیں, کوئی مداوع کا امید ہے؟ امید فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہی, کوئی دور تک کسی کچھ نوائی ہمیں حاصل نہیں ہے. سارے آفیسر بھی آ رہے ہیں, واسا والے بھی آ رہے ہیں, اور وابڈا والے بھی آتے ہیں, تو روز پرابلم ہے.
कभी कोई खुदाई कर रहे हैं, कभी खुदाई बंद करके जा रहे हैं, फिर नई टीम आ जाती है, दोबारा खुदाई करते हैं, तो इसकी मर्जी है। सुस्त रवि का शिकार है। आप बताइएगा यहाँ ये बड़े बड़े बिल आंदे साडी ये आप आवाम का गुस्सा देख रहे हैं कि लोग किस हद तक नाराज हैं। जैसे कि भजन पीछे से लाइन डर रही है तो पीछे से बनाते जाएं, जैसे कि इधर तिधर पहुंच वाटर जाए सप्लाई भी डालनी है। वाटर। तो ऐसे तो बंदे रुल गए ना, हम तो रुल गए, खड्डे हैं, एक तो ना आने जाने का मसला है, फिर ऊपर से आपके सामने ना पानी है, 2 साल से पानी नहीं आ रहा हमारे, अब बंदा कहाँ जाए। पूरे दिन में सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ आती हैं, तो बंदा यहाँ क्या कारोबार करे, लोग रास्ते छोड़ गए। हालांकि पाकिस्तान मुल्तान का जो मेन रास्ता है वहाँ पर रोड बहुत पुराना रोड है, और ऐसा कम अज़ कम से ज़्यादा था। बिल्कुल 50-60 साल से ये रवां दवां था, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से पूरा रोड बर्बाद हो गया। रोड ख़त्म हो के रह गया, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के जो हालात हैं, आप तो जिससे बात करते हैं वो मायूसी नज़र आता है, आपको कोई उम्मीद है ये बन जाएगा? भाईजान पिछली दफ़ा भी आप आए थे 2 महीने पहले, उस टाइम से लेके अब तक देख लो क्या बना रोड का। तो बार बार नॉक करते हैं, बताते हैं हुकाम के, आपके नुमाइंदों को जिनको आप वोट देते हैं कि भाई ये आपके वोटर्स की सूरत हाल है, आपके लोगों की ये सूरत हाल है, वो नहीं सुनते। क्या करें, इधर सारा रोड 2-3 महीने हो गए आप आए हो, कुछ भी नहीं बना, उल्टा और पीछे से काम शुरू हो गया, सारा कारोबारों का सत्यानाश है पड़ा। दुकानदार जिनको मालिकों को किराया नहीं देते वो कहते भाई खाली कर दो, कहाँ जाए बंदा, उल्टा कहते किराया और बढ़ाओ, और काम करने की भी आए और कहते किराया बढ़ाओ। और कारोबार होएंगे तो कारोबार के सिर पे उनको किराया देंगे, नहीं तो उल्टा कहते भाई खाली कर दो। वही आपके सामने गुफ्तगू आ रही है कि दुनिया जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है लोग खुश होते हैं, लेकिन आप यहाँ ये सूरत हाल है कि लोग अब ज़हनी तौर पर इस हद तक परेशान हो चुके हैं, वो कहते हैं भाई बस कर दो और इस रोड को बनाओ। भाईजान आप बताइएगा कितनी ज़्यादा परेशानी है, घरों में पानी आ रहा है, साफ़ आ रहा है, कैसा आ रहा है? नहीं, पानी साफ़ नहीं है, सरकारी पानी जो है उसमें बिल्कुल कचरा आ रहा है, वो है, उसमें कोई चीज़ भी साफ़ नहीं है, पीने के लायक है नहीं, थोड़ा सा पानी भर के रखो वो पीला हो जाता है। और गैस का मसला है, गैस तो टाइम बना हुआ है उसमें भी नहीं आती, और जो मसले हैं बाकी नहीं है सिस्टम सही, कोई सिस्टम ठीक नहीं है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। एक और अंकल यहाँ पे, अंकल जी क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे चल रहा है काम? दादा जी ने ऐसा पका है कि रोड ने सारा खाना ख़राब कर छोड़े, असा ही काबिल नहीं रहा कि बालों को रोटियां खवा सको। यो सरदा गिलानी के दौर के वजह दुकान पिछा थी, कहीं को पता नहीं लगा कि भाई ये किमें बनियां किमें नहीं बनियां। इवें हुण आम डोगर को दुआवां च देनियां झोलियां चाह चाह के, ये तो सारा भतरीजा प्यो का बड़ा अच्छा ही, लेकिन झोलियां चाह के बाद दुआवां देनियां कि ना रो दुकानदार जड़े ने बेचारे ये हशर थी कि वो हशर थी कि कमा मर्द का। मैं बैठा थी, देखो कितना बंदा खड़े हुए इतना ही करूँ लात टूट गई, और ओ आए हादसात भी होते हैं यहाँ पर? हादसात मामूल हैं जी हाँ साहब, बिल्कुल हर वेले देखे इतना जड़ा है ना जी अपना मोटरसाइकिल लड़ते पे एक्सल टुटते पे लात टूट इस वक्त वो लोग शहरी मुझे जो यहाँ पे गिरा, एक्सीडेंट हुआ, उसकी लात टांग का मसला हुआ। आप क्या हुआ था यहाँ पर? भाई जी हम आ रहे थे, मोटरसाइकिल स्लिप हुई पत्थर से और नीचे गिरा, मेरा घुटना निकल गया। ये आज 15 दिन हो गए दर्द पीट रहे हैं। यहाँ पे आए रोज ये मसला होता है? आए रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई बच्चा, कोई लेडीज, कोई ना कोई गिरता है लाजमी। किसी को नहीं है फिक्र, कोई गवर्नमेंट 2 साल हो गए जलील हुए पड़े। ये इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी लोगों की, और लोग किस हद तक परेशान हाल है। हम ज़रा वासा MD वासा के पास भी जाएंगे, उनसे ज़रा जानेंगे कि आखिर ये जो लोग शिकवा कर रहे हैं, सिर्फ नवाबपुर का मसला नहीं, TB अस्पताल रोड हो गया, उसके अलावा अल मुस्तफ़ा रोड हो गया, और जो बाकी रोड हैं उन पर जो मनसूबे शुरू हुए आखिर मुकम्मल क्यों नहीं होते? फंड अगर नहीं है तो हुकूमत से डिमांड क्यों नहीं की जाती? अगर हुकूमत से डिमांड की गई है तो मुंतखब MNAs MPs अपने मुतालबे अपनी हुकूमत से क्यों नहीं मनवा सके? यकीनन ये एक सवाल निशान है हमारे नुमाइंदों पर जो यहाँ से मुंतखब होते हैं, और लोगों की तकलीफ़ का शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं शहर मुल्तान में जो सीवरेज के मंसूबे जारी हैं, उसके अलावा वाटर सप्लाई के हवाले से जो
शहरियों को प्रॉब्लम्स हैं, वासा इस हवाले से किस हद तक वर्किंग कर रहा है? जो एक राय बन चुकी है कि मनसूबे शुरू होते हैं फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, क्या वाकई हकीकत है या इस पर काम जारी है? और काम जारी है तो कब तक ये मुकम्मल होंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं वासा ऑफिस। और हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा कैसर रज़ा। हम जरा उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एक जो अमूमी राय बन चुकी है कि जो वासा के स्पेशल मनसूबे शुरू होते हैं, यकीनन मुश्किल काम होता है, सारी लाइनें और सड़कें उखाड़ना पड़ता है। वो कहते हैं शुरू होते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। क्या फ़ंड्स के इशूज़ चल रहे हैं और जो मनसूबे हैं जारी हैं, कब तक उम्मीद है कि मुकम्मल होंगे? बहुत शुक्रिया नायब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वासा का काम इंतहाई डिफ़िकल्ट काम है। हम जहाँ सीवर लगा रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वो 25 से 30 फुट गहराई की सीवर लाइन लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आने के बाद यहाँ हमने नवाबपुर रोड का सीवर 95% मुकम्मल कर लिया। सिर्फ चंद एक जगहों के दरमियान के गली ग्रेटिंग्स रह गए हैं, वहाँ सीवर आपने देखा कि लगा दिया, हमने मुकम्मल कर दिया है। नंबर 1। नंबर रोड पे अभी भी खंडरात नज़र आते हैं और सड़क बनाने के लिए अब आमिर डोगर साहब ने CM का स्पेशल डायरेक्टिव करवा रहे हैं। CCFD में केस चला गया है। हमने पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं हाईवे डिपार्टमेंट को, और इन प्रिंसिपल 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक MOU हो गया है। हमने पैसे उनको ट्रांसफ़र कर देने, बाकी पैसों की जो कमी है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करते हुए उनके लिए अप्रूवल दे दी है। हाईवे डिपार्टमेंट 5.5 किलोमीटर की सड़क वो बना के देगा। नंबर 1। नंबर 2, TB अस्पताल रोड का सीवर मुकम्मल हो चुका। अब हम उसके लिए जो साइडों के गलियों के कनेक्शंस हैं वो करने लगे हैं, वो सड़क हम वासा वाले बना के देंगे। नंबर 3, बाबा सफरा रोड की TB अस्पताल, मैं दोबारा जानना चाहूँगा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुए, लोग परेशान भी थे, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये कब तक मनसूबा मुकम्मल होगा? ये इसकी सड़क हमने बनानी है। अब हम उनकी वेंटिलेशन शाफ्ट लगा रहे हैं। 3 वेंटिलेटिंग शाफ्ट लग गई, 1 लग गई है, 2 और रह गई हैं। उम्मीद ये है कि इस हफ्ते में वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके पत्थर की फैलाना शुरू कर देने। वाटर बाउंड करने के बाद हमने इसकी सड़क हमने बना के देनी है, उसके बाद वासा बनाएगा। इसके लिए फंड्स मौजूद है या फिर मौजूद हैं? गवर्नमेंट ने इस साल हमारे फंड्स थोड़ा लेट ज़रूर हो गए थे। 20 सितंबर 2022 को हमारे फ़ंड रिलीज़ हो चुके हैं। मेरे पास फंड्स मौजूद हैं, फंड्स की अब कोई कमी नहीं है। अब जस्ट हमने उन पर काम करना है। कह सकते हैं कि नवंबर के एंड तक ये मनसूबा कुछ मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो अब नवाबपुर रोड की बात की, नवाबपुर रोड TB अस्पताल रोड दिसंबर तक इंशाल्लाह मैं मुकम्मल कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद हमने बाबा सफरा रोड के ऊपर भी सीवर लाइन लगा दी है। उसकी वाटर सप्लाई का काम था, वो भी वाटर सप्लाई की लाइन भी उसके लगना शुरू हो जाएगी, वो भी मुकम्मल कर देंगे। तीसरे नंबर पर अब हम करना जा रहे हैं ख़याम सिनेमा से लेकर घंटा घर की तरफ रोड है, वाटर वर्क्स रोड, वो हमेशा से पानी खड़ा रहता था, वो हम शुरू कर चुके हैं। 100 फुट पाइप हमने 2 दिन में लगा दिया है। उम्मीद ये है कि वो भी हम मिड नवंबर तक वो भी मुकम्मल कर लेंगे। उसकी सड़क के पैसे हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो सड़क म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाएगी। कमरबाद शहीद चौक जो शमसाबाद कॉलोनी के सामने है, वाया ऑफिसर्स कॉलोनी, ये हमने जाना है शंग्रीला क्विज़िन की तरफ जो बोस रोड के ऊपर है। ये L शेप की सड़क बनती है, इसके पैसे हमने MDA को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी। ये सड़क वो बनाएंगे, सीवर हमने लगा के दे देना है। इसी तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट काम है अल मुस्तफ़ा रोड पे भी काम जारी है। विहाड़ी रोड का काम मुकम्मल कर दिया, उसके ऊपर हमने बैकफिल भी कर दी है। अब सड़क की दूसरी साइड मुल्तान से निकलने वाली सड़क साइड है, उसके ऊपर ट्रैफिक की सड़क चालू है। ठीक है, ये जो 5-6 मेन मनसूबे इस वक्त जारी हैं, तो आने वाले कितने महीनों में हम कह सकते हैं कि इन मनसूबों पर काम 50% जो रोड के हवाले से है बाकी मुकम्मल हो जाएंगे? रोड्स के हवाले से देखें, जो मैंने आपकी विहाड़ी रोड वाली सड़क बनी वो NHA बनाएगा, वो हमने पैसे और मटेरियल जो निकाला है हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, वो उनकी डोमेन में आती है। विहाड़ी रोड वो बनाएंगे। अल मुस्तफ़ा रोड हाईवे डिपार्टमेंट बनाएगा, वो हमने पैसे उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसके बाद बाबा सफरा रोड हाईवे डिपार्टमेंट बनाएगा, वो पैसे हम उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। MDA चौक वाली सड़क नवाबपुर रोड वाली हाईवे डिपार्टमेंट बनाएगा। कॉर्पोरेशन बनाएगी ख़याम सिनेमा से घंटा घर वाली। जो वासा खुद बनाएगा वो सिर्फ TB अस्पताल रोड हम खुद बना के इनको देंगे। इस हवाले से जैसे मुकम्मल होगा तो रोड का काम शुरू कर रोड का काम हमने हफ्ते वाले दिन से पत्थर का फैलाव शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। शहर में जो सीवेज के बाकी मसाइल हैं, क्योंकि जो मास्टर प्लान बना था उसमें ये भी था कि जी सैकड़ों क्या 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जो वासा की सिविल लाइनें हैं वो बोसीदा हैं, तो ये तो चंद किलोमीटर है या चंद 100 किलोमीटर की हम बात कर लें, 148 किलोमीटर का मनसूबा होगा, तो बाकी जो शहर का सिस्टम है उसको चलाना भी एक मुश्किल टास्क है और वहाँ भी सीवेज के मसाइल रहते हैं। उसके हवाले से क्या वर्किंग हो रही है? क्योंकि अब तो जिस तरह से ये मनसूबे चले हैं तो लोग अब नहीं चाहते कि उनकी सड़कें उखाड़ी जाएँ और सीवेज का मनसूबा शुरू किया जाए। देखिए, सीवर लगाने के लिए सबसे पहले सबसे डिस्पोजल बनता है,
اس بعد ان کی مین لائنیں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے سیکنڈری لائن سے بنتی ہیں، پھر اس کے بعد ٹرشری لائنز بنتی ہیں. یہ میں نے جتنی سڑکوں کے آپ کے سامنے نام لیے ہیں یہ سب مین لائنز ہیں. نوابپور روڈ مین لائن ہے، ٹھیک ہے. ٹی بی اسپتال روڈ مین لائن ہے، آپ کی خیام سین والی سڑک مین لائن آتی ہے. یہ ساری مین لائنز. المصطفیٰ روڈ 60 انچ کی لائن مین لائن، بہت بڑی لائن ہے. اس سے آپ کے 10-12 یونین کونسلوں کا ریلیف ملے گا. سورج کنڈ روڈ مین لائن تھی. یہ ساری مین لائن. اس کے بعد اگلا فیز میں ہم نے ان کی سیکنڈری لائن اور ٹرشری لائنز کرنی ہے. دیکھیے اگر کوئی مریض بہت سویئر قسم کا بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کا علاج کہتا ہے کہ جناب اس کی اگر کلاگنگ آ گئی ہے، کلاٹس آ گئی ہیں تو اس کا آپریشن بائی پاس ہوگا، اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ دوائیوں سے اگر مریض ٹھیک نہ تو یہی حال سیوریج کا ہے. سیوریج سن 80 سے 88 تک جو لگا ہے سیور، الٹیمیٹلی اس نے بوسیدہ ہونا ہی ہونا تھا، وہ ہو چکا. اب اس کو ریپلیسمنٹ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یوں منہ سے نکالا اور فوراً ہو جائے، پاسبل نہیں ہے. دیکھیں 28 فٹ گہرا المصطفیٰ روڈ کے اوپر سیور لگا. 28 فٹ گہرے کا مطلب آلموسٹ 3 منزل مکان جتنی کھدائی کرنا پڑتی ہے. اس کی مٹی نکال کے باہر رکھنا، ڈبل ٹرپل ایکسکیویٹرز لگتے ہیں تب جا کر اس کی کھدائی مکمل ہوتی ہے. ہم سیور لائنس لگاتے ہیں، اس کی بیک فل کرتے ہیں کیونکہ زمین نرم ہوتی ہے 28 فٹ کی. اس کو بیٹھتے 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 ٹائم لگتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جہاں جہاں دیکھیں المصطفیٰ روڈ کا ہم 3000 فٹ سے زیادہ لگا چکے ہیں. جہاں تک لگ چکا اب وہ لوگ سکھی ہیں، سکون سے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا جو کئی سالوں کا مسئلہ تھا پانی کی نکاسی کا وہ حل ہو چکا. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹائم لگ رہا ہے، ہو جائیں گے. جو ایک مین مسئلہ آیا وہ تھا کراؤن فیلئر کا. 70 سے زیادہ شہر میں کراؤن فیلئر ہوئے. جگہ جگہ ہم نے 9 نمبر چونگی کے پاس بھی دیکھے، اس کے علاوہ بوسٹن روڈ پہ بھی دیکھے، اس کے علاوہ پیرا غائب روڈ اور یونیورسٹی کے پاس ہر جگہ آئے روز اطلاع ملتی کہ فلان جگہ کراؤن فیلئر ہو گیا، فلان جگہ ہو گیا. اب ان کی مرمت، اب ان کو پراپر فعال کرنا، اس کے لیے کتنا فنڈ ریکوائرڈ ہے، کتنی ڈیمانڈ کی ہے اور کتنا آیا ہے؟ اس کے لیے 73 کراؤن فیلئر ہو چکے تھے، 2 اس کے بعد ہوئے ہیں. پچھلے ہفتے میں ٹوٹل 75 کراؤن فیلئر ہو چکے ہیں. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے میاں اسلم اقبال کی سربراہی میں یہاں ایک ٹیم بھیجی تھی جس میں ہمارے محکمے کے سیکریٹری صاحب بھی تھے، سیکریٹری ساؤتھ ملتان بھی تھے، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی جی صاحب، سب نے مل کر اس کا وزٹ کیا، ورکنگ کی. ورکنگ کرنے کے بعد ہمیں یہ 73 کراؤن فیلئر ٹھیک کرنے کے لیے 100 ملین درکار تھے. 100 ملین کی سمری سیکریٹری صاحب کے آفس سے جا چکی، سی ایم آفس میں. CCFD کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں انہوں نے فنڈ ریلیز کرنے ہیں. ہم نے یہ کام ٹھیکیداروں کے لیے کہتے ہیں فنڈ ریلیز ہوں گے اس کے بعد یہ کام شروع ہوگا. کام ہم نے کروا دیے ہیں. کام تو کیونکہ یہ ایمرجنسی ایسی ہوتی ہے، ایمرجنسی کلاس کہتے ہیں، ہم نے کام فوری طور پر کروا دیے ہیں. اب کوئی ایسی جگہ آپ کو گڑھا نظر نہیں آئے گا جہاں کراؤن فیلئر ہو اور وہاں سے پانی کی پرابلم آ رہی ہو، چاہے پیرا غائب ہو، چاہے 9 نمبر چنگی ہو. یہ سارے کام ہم نے کروا دیے. لائن ریپلیسمنٹ کا کام یہاں سے بھی شروع ہوا تھا. یہ 9 نمبر چنگی سے جو یہ روڈ تھا جس کو جو سامنے 9 نمبر سے بوسٹن روڈ کم، وہ اس منصوبے کی کب تک ڈیڈ لائن ہے، کب تک مکمل ہوگا؟ جی قمر آباد شہید دیکھیں جو کراؤن فیلئر سب سے پہلے مارچ 2000 اسی مارچ میں جب شروع ہوئے تھے، اپریل میں 6 کراؤن فیلئر 9 نمبر چنگی سے لے کر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک تک آ چکے تھے. ان کا ہم نے بائی پاس ارینجمنٹ لگایا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی سڑک کے سامنے سے آنا ہے، پھر ہم نے ٹنل بورنگ کر کے کھانے وال روڈ کو نیچے سے کراس کرنا ہے، پھر رومی صاحب جلال الدین رومی صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرتے آفیسز کالونی کے سینٹرل پارک میں جانا ہے. اس پارک سے پھر ہم نے شنگریلا کوئزن کی طرف جانا. اب ہم نے یہ ساری لائن لے کرتے ہوئے ٹنل بورنگ کرتے ہوئے نیچے سے گزرنے کے بعد رومی صاحب کے گھر کے کارنر تک پہنچ گئے ہیں. باقی تقریباً 600-700 فٹ رہ گیا ہے. وہ 600-700 فٹ بھی امید یہ ہے کہ 1.5-2 مہینے میں مکمل کر لیں گے. 2 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا. ایک لائنوں کی جو صفائی کا معاملہ ہے، ڈی سلٹنگ کے حوالے سے اکثر اوقات واسطہ کی جانب سے یہ جاری بھی ہوتی ہیں پریس ریلیز کے جی فلان جگہ ڈی سلٹنگ کی گئی، فلان جگہ ڈی سلٹنگ کی گئی. لیکن لائنوں کے صفائی کے حوالے سے، لائنوں کی بلاکیج کے حوالے سے مسائل کافی زیادہ شہر میں ہیں. تو کیا واسطہ کے پاس پوری شہر کی لائنوں کی صفائی کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے؟ اگر کیپیسٹی ہے تو کس حد تک واسطہ شہر کی جو لائن ہے ان کو سیور کو صاف کر سکتا ہے؟ جی کیپیسٹی کی جہاں تک بات ہے، لیبر تو اتنی 24 گھنٹے یا پورا سال پوری زندگی کے لیے نہیں رکھی جا سکتی. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، فنڈ موجود ہوں، ہم لیبر ہائر کر لیتے ہیں ڈیلی ویجز پر، ان کے ذریعے صفائی کرواتے ہیں. اس کے لیے بھی سی ایم صاحب نے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری ہائی لیول کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں نے 100 ملینس کے لیے انہوں نے اپروول دینی ہے. سمری جا چکی ہے. جو ہی پیسے آتے ہیں پورے ملتان کے مین اور سیکنڈری اور ٹرشری جو سیورز ہیں، چھوٹی گلیوں کو چھوڑ کر تمام بڑے سسٹم کو ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. ان کی ہم نے ڈی سلٹنگ کروانی ہے. اگلے مونسون سے پہلے کتنے عرصے بعد آپ کراتے ہیں؟ کوئی لائنوں کا شیڈول ہو؟ سب روٹین کا کام ہمارا مین ہولز کے ذریعے ڈی سلٹنگ ہوتی رہتی ہے. اب اس مونسون کے بعد ہم نے ڈی سلٹنگ ابھی حال ہی میں معصوم شاہ روڈ کی مکمل کی ہے، چوک رشید آباد تک کی ڈی سلٹنگ مکمل کر لی ہے. اس میں دیکھیں کہ ٹرالیوں کے حساب سے اندر سے ریت، گند، اینٹیں، مٹی نکلتی ہے. ہماری جو ریگولر ہمارا اسٹافنگ ہے، سیور مینس ہیں، وہ ڈیلی مین ہولز کی ڈی سلٹنگ کرتا ہے. جہاں جب پرابلم آتی ہے، کلاگنگ ہوتی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی پرابلمس آتی ہیں. ہم ڈیلی روٹین میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈی سلٹنگ
ना हो रही हो। ये राउंड द क्लॉक एक प्रोसीजर है, हम करते रहते हैं। सीवेज के वजह से जो मसाइल सामने आ गया, वाटर सप्लाई के हवाले से अगर हम बात करें तो शहरी ये कहते हैं जहाँ भी वासा को सीवेज का मनसूबा शुरू करता है, अगर वो साल का है 2 साल का है, तो वाटर सप्लाई भी साथ बंद हो जाती है, तो उनके पास तो नहाने का पानी भी नहीं होता। तो इससे कोई मुतबादिल है या फिर ये मजबूरी में किया जाता है? नहीं, मजबूरी में तो नहीं किया जाता। दरअसल बात यह है कि यहाँ पुरानी लाइनें लगी थी, वो एस्बेस्टॉस सीमेंट की थी। अब जब हम सीवर के लिए खुदाई करते तो एस्बेस्टॉस सीमेंट एक तो पाकिस्तान में पाइप बनना बंद हो चुका है, इसका नेमुल बदल अब है नहीं हमारे पास। अब हमें हर हाल में उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस करने के लिए पहले हम पीवीसी पाइप इस्तेमाल करते थे, अब पीवीसी पाइप ब्रिटल होने की वजह से अब वो इस्तेमाल बंद कर दिया। अब नई टेक्नोलॉजी के तहत HDP हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप आ गई हैं, अब हम वो लगा रहे हैं, लेकिन निस्बतन थोड़ा महंगा है। देर पा पायदार ज़रूर है, महंगा है। जो फंड्स आते हैं वो हम रिप्लेसमेंट साथ साथ करते जा रहे हैं। अब पूरे मुल्तान के लिए अगर देखा जाए तो पूरी लाइनें रिप्लेस करना, फिर वो उखाड़ पिछाड़ खुदाइयाँ, फिर पाइपलाइन लगाना बहुत कम्बरसम जॉब है। जहाँ जहाँ जिस इलाके में बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम थे कंटेमिनेशन के, उन इलाकों में हमने नए ट्यूबवेल लगाकर लाइनें रिप्लेस करने का काम भी जारी है इंशाल्लाह तबारक ताला। इसके फंड्स भी मैं कह रहा हूँ कि अभी 3रा साल इस स्कीम का। मुल्तान वाला एक वाटर सप्लाई का मनसूबा शुरू हुआ, इफ्तिताह भी हुआ, ढोल भी बजे, तख्तियाँ भी लगी, वो काम रुक गया। अब उसका कोई है कि कब तक वो काम दोबारा से शुरू हो जाएगा? हमने ये देखा कि इन्होंने पहले हमने ये सोचा था वासा ने कि तमाम हमने छोटी गलियों के GI पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो लोहे वाले पाइप हैं वो चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो मेरी राय में वो पैसे का ज़्यादा था। अब हम डोर टू डोर में सर्वे करवा रहा हूँ कंसल्टेंट के ज़रिए, इसमें चेक कीजिए अगर एक गली 100 फुट लंबी है तो उसमें अगर एक लेंथ 20 फुट की चेंज करने वाली है तो सिर्फ वही चेंज किया जाए, बजाय इसके कि सारा पैसा हम सिर्फ उखाड़ पिछाड़ में ज़ाया करके बैठ जाएँ। हम वो करें कि जो वाकई अशद ज़रूरत है। मिलावट की जो सीवर और दीगर पानी की मिलावट शिकायत कम हो जाएगी इससे इंशाल्लाह, क्योंकि वो GI पाइप ओपन लगा हुआ है, जहाँ गले हुए पाइप है उनसे नालियों का पानी उन सीवर की वाटर सप्लाई की लाइनों के अंदर जाता है, वो मैं इंशाल्लाह रिप्लेस करवा दूंगा इंशाल्लाह। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, लास्ट में हम जाना चाहेंगे, वासा जो फिल्टर प्लांट चलाया वो तो चल रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ने, ज़िला कौंसिल ने जो बनाए वो आज खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और कोई उनको ऑन करने को तैयार नहीं है। क्या आने वाले दिनों में कोई प्रपोजल है कि वासा के पास अगर एक्सपीरियंस है, मैन फोर्स है, तो वो शायद कि दीगर फिल्ट्रेशन प्लांट को भी चलाने की जिम्मेदारी ले? देखिए, बात दरअसल ये है कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स पर ख़र्चा ही ख़र्चा है, उस पर कोई आमदनी वासा को नहीं है, एक इजाफी ज़िम्मेदारी है। हमने कमिश्नर साहब की गोश गुजारी की थी कि अगर कॉरपोरेशन अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हमें देती है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी पैसे दिए जाए और कुछ साल 2 साल के लिए हमें उनके ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमें दे दिया जाए। उसके बाद हम अपना रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, हम इसके बाद उनका खुद ब खुद मेंटेनेंस करेंगे। कम से कम मिनिमम 1 साल के पैसे दे दें, हम चलाने को तैयार हैं, क्योंकि बेसिक जिम्मेदारी ये वासा की कॉरपोरेशन का नहीं बनता। फंड्स का इशू कह सकते हैं? 100% फंड्स का इशू है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त हमने बात की कि सीवर से जो आपने कहा कि रेत और बाकी चीज़ें बरामद होती हैं, डीसिल्टिंग के हवाले से प्रॉब्लम होते हैं, वाटर सप्लाई की लाइनें जगह जगह टूट चुकी हैं, शहरियों को किस तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वो किस तरह से वास्तव को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो इंसानों की बेहतियाती की वजह से होती है। हमारी कौम में बदकिस्मती ये है कि जो भी काम करे गवर्नमेंट लेवल पर आके करे। अगर मैं अपने घर के सामने के हिस्से को, सड़क को, गली को, वाटर सप्लाई की लाइन को, सीवर को अगर अपना ज़ाती समझ के इस्तेमाल करूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन हम समझते हैं, हमारी कौम का वतीरा बन चुका है, 100% हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि कोई भी ख़राबी आ जाए, एक टफटाइल उखड़ जाए, हम लोगों की इतनी तौफीक नहीं होती कि उसको ठीक किया जाए। अगर हम अपने घर के लिए अगर एक ईंट उखड़ जाए तो फ़ौरी ठीक करवा लेते हैं, वो भी मेरे घर का हिस्सा है, मेरे घर के सामने जो गली है। लेकिन हम माजरत के साथ हमारी आवाम इस चीज़ पर नहीं आती, वजह इसके कि हम खुद ठीक कर लें, उसको ख़राब होते 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 एंड पर जब बिल्कुल बर्बाद हो चुके तो फिर कहा जाता है हम नवे सिरे से बनाओ। अब आप कोई सड़क देख लीजिए, सड़क के नीचे सड़क नज़र आएगी आपको, जहाँ हम सीवर लाइनें लगा रहे हैं, यहाँ आप देखें कि हम खुदाई करते 3-3 सड़कें निकल रही हैं। इट मीन्स कि ये सड़कें तो बनी थी, लेकिन आवाम की अपनी कोताहियों की वजह से, गलतियों की वजह से सड़कें ख़राब हो गई। महकमों का कसूर भी होगा, लेकिन ज़्यादा हमारे अवाम भी अपने ज़िम्मेदारी निभाने। कोऑर्डिनेशन भी तो नहीं होती, जिससे आप सूरज म्यानी का रोड। कोऑर्डिनेशन से बात ये है कि मैंने आके सीवर लगा दिया, सड़क उखाड़ दी, सड़क बेशक कल पिछले साल बनी हो। अब सड़क बनाने वालों का सबसे एंड का काम सड़क बनाने वाला होता है। सबसे पहले वहाँ सीवर लाइन लगेगी, सबसे गहराई में सीवर लाइन जाती है, फिर उसके बाद सुई गैस वाले आ जाएँ, उसके बाद वाटर सप्लाई लाइन लगा दिया जाए। अगर उसके बाद कोई और टेलीफोन की लाइन है, वो लगने के बाद एंड पर आकर रोड बन जाना चाहिए। पर एक दफ़ा रोड बन जाए उसको फिक्स कर देना चाहिए, अगले 10 साल तक इस पर कोई मज़ीद उखाड़ पिछाड़ या रोड नहीं बनेगा। हम कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, क्योंकि हाईवे को बजट उनका अलग महकमे के ज़रिए आता है,
वासा को अलग महकमे के ज़रिए बजट आता है, सुई गैस को अलग महकमे के लिए बजट आता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से मेरी एक राय है कि ये ऐसा आता है। अगर हम कोई बड़ी सड़क पर काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को पहले चाहिए कि उस सड़क की जितनी 7 लवाजमात हैं वो भी साथ ही नथी करके डफटेल करके हाईवे का अगर सड़क बना रहे हैं तो हाईवे को पहले बता दीजिए, इसके पहले सीवर चेक कर लिया जाए कि अगर सीवर नहीं है तो पहले सीवर डलवा लीजिए फिर सड़क बना लीजिए। जैसे MDA चौक से पुल बराड़ा की तरफ जाते हैं तो हमने सड़क नीचे सीवर हमारी लाइन एक्सपायर्ड है, वो वेंटिलेटर पे चल रही है। इन अदर वर्ड्स हमने उनको इसलिए कहा था कि जब वो लाइन हमने बनानी है, रिप्लेस करनी, आप सड़क उसके बाद बनाइए। अब वो हाईवे वालों को ये ख्याल आ गया, उन्होंने वाकई कैसा किया कि सड़क आधी चौड़ाई में बना दी, दूसरी आधी चौड़ाई हमारे लिए छोड़ दी है कि वो जब एक्वायर करेंगे हम वहाँ उसका ठीक कर देंगे। जी जी, आपने गुफ्तगू जानी। यकीनन अदारों की कोऑर्डिनेशन से जो मसाइल हैं वो मज़ीद बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। उसके साथ साथ अब देखना ये है कि जो वासा के पेंडिंग मनसूबे हैं, जारी मनसूबे हैं, वो कब मुकम्मल होते हैं और जो इस हवाले से शहरियों को जो रिलीफ की जो नवीद सुनाई गई थी वो कब नवीद बनती है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों में मज़ीद वाज़ हो जाएगा। उसके साथ साथ शहरियों से भी ये वासा हुकाम की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि शहरी भी इस हवाले से ताउन करें और स्पेशली सीवर में और लाइनों में जो इस हवाले से अशिया हैं और प्लास्टिक की अशिया और बाकी चीज़ें ना फेंकें ताकि जो ब्लॉकेज के मसले हैं वो कम से कम हो। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।